Hello friends, welcome you all on ASP means Alka Study Point. I am completing a series of 5000 questions and answers. If you find this video is helpful for you, please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my next uploading video. A student, we have our first question, and that is William Blake's Songs of Innocence came out in which year? Option A 1776, option B 1789, option C 1787 or option D 1800. Which option is correct? Here we know that William Blake's Songs of Innocence came out in 1789, means B is the right answer. Dear student, you need to know that William Blake is also known as seminal figure of romantic age. Okay, next question we have William Blake's Songs of Experience. William Blake's Songs of Experience were published in option A 1798, option B 1788, option C 1794 or option D 1802. Which option is right? Blake's Songs of Experience were published in 1794 is the correct answer. Okay, we have next question, that which of the following was Blake's first volume of poems? Which of the following was Blake's first volume of poems? Option A Songs of Innocence, option B Songs of Experience, option C The Book of Tales, and option D Poetical Sketches. Which option is correct option? Here the correct option is Poetical Sketches. Coming to the next question, and this question is Tiger Tiger Burning Bright appears in option A Songs of Experience, option B Songs of Innocence, option B C Poetical Sketches, option D The Book of Eurygen. Which option is the right answer? Songs of Experience is the correct answer. Okay, we have next question 307, and question is Blake's dictum that Milton was a true poet and of the devil's party without knowing it appears in Milton's The Marriage of Heaven and Hell, Jerusalem or Europe. Repeating again this question, that Blake's dictum that Milton was a true poet and of the devil's party without knowing it बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है. Which option is the correct option? Option B is the correct option. Option B The Marriage of Heaven and Hell is the correct answer. Next question, that without contraries is no progression. Without contraries is no progression appears in Milton, Keats, Blake और शैली. कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? फटाफट स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखते जाइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लेक, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू जनरलाइज इज टू बी अ फूल कम्स फ्रॉम. To generalize is to be a fool comes from Johnson, Pope, Byron or Blake. Which option is right? To generalize is to be a fool. Option D is correct. 310 question number. To dissect is to kill appears in The Marriage of Heaven and Hell, Europe, The French Revolution or Milton. कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए. पहला ऑप्शन है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, यूरोप, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मिल्टन. इसका फटाफट बताइए. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1800, 1798, 1789 या 1802. कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सब लोग जानते होंगे मुझे लगता है 1798 इज द राइट आंसर बिकॉज लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन 1798. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 वॉज रिटन बाय
किसके द्वारा लिखा गया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, जो कि 1800 में आया था, कॉलरिज के द्वारा या कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के द्वारा, वर्ड्सवर्थ या फिर वर्ड्सवर्थ एंड साउदी के द्वारा। ये तो हम जानते हैं कि लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन 1798 और उसको कोलैबोरेशन में था कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है लिरिकल बैलेट नहीं पूछा है, बल्कि पूछ रहा है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट 1800 was written by Wordsworth. So Wordsworth is the correct option here. Next question, Michael of Wordsworth was included in lyrical ballad, was not included in lyrical ballad, was included later in lyrical ballads, or was never included in lyrical ballad? Correct option is option C, was included later in lyrical ballad. Michael of Wordsworth was included later in lyrical ballads. Next question, which of the following poems was a part of lyrical ballad? इसमें से कौन सी पोयम है जो लिरिकल बैलेड की एक पार्ट है? इमॉर्टैलिटी ओड, कुबला खान, क्रिस्टाबेल या टिंटन एब्बे? कौन सा आंसर राइट है? टिंटन एब्बे इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. These lines from Wordsworth refer to American Revolution, French Revolution, Glorious Revolution या Industrial Revolution. Which option is right? Option B, French Revolution is the right answer. These lines from Wordsworth refer to French Revolution. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Next question, the prelude of Wordsworth was published in 1850, 1805, 1815 या 1801? Which option is correct option? The prelude of Wordsworth was published in 1850 is the right answer. Next, which of the following poems of Wordsworth is complete? The Recluse, the Excursion, the Prelude, or the Ruin's Cottage? Correct option is option C, the Prelude. The Prelude is the poem of Wordsworth which is complete. Okay. Next, Keats' statement that we hate poetry that has palpable design upon us is said in relation to Coleridge, Blake, Southey, or Wordsworth. Keats' statement that we hate poetry that has palpable design upon us is said to in relation to Wordsworth. Next question, and never turned a stone appears in which of the following poems? Option A, Tintin Abbey, option B, Michael, option C, Leech Gatherer, and option D, Ode to Duty. And never turned a stone, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, माइकल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वाज? Wordsworth first publication was descriptive sketches, poetical sketches, lyrical ballads, or ecclesiastical sonnet? Which option is the correct? Tell it. Descriptive sketches. First option is the right answer. First option, descriptive sketches. Okay. Next question. The prelude is an epic. The prelude is an epic. Christianity, self, society, or war? Option B is correct here. Option B, self. The prelude is an epic of self. 322. Browning's poem The Last Leader was written when Wordsworth returned from France, published the prelude, became a poet laureate, or left the Lake District? Which option is correct? The last leader was written when Wordsworth became the poet laureate. जब वर्ड्सवर्थ पोएट लारीट बने थे तो फिर ब्राउनिंग की लास्ट लीडर लिखी गई थी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, हम जितने भी पोएट लारीट हुए हैं सभी
फ्रॉम बिगनिंग टू ऑनवर्ड, जितने भी पोएट लारिट हैं उनकी भी वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्द ही बनाएंगे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू नो दैट हाउ मेनी पोएट लारिट्स आर इन इंग्लिश लिटरेचर, और उनका डेट कब से कब तक रहा है, वो कब से कब तक पोएट लारिट थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। ब्राउनिंग्स पोएम द लास्ट लीडर वॉज रिटेन व्हेन वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लारिट, जब पोएट लारिट बने थे। पोएट लारिट क्या होता है? पोएट लारिट अपने समय का सबसे बड़ा पोएट होता है, जो कि किसी उस समय के तत्कालीन किंग के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि आप सबसे बड़े पोएट हैं इस अपने समय के, और आप इस पोस्ट पे रहेंगे, पोएट लारिट के पोस्ट पे। ओके, डिटेल में हम उसको पोएट लारिट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पे हैं, इसलिए क्वेश्चन है फॉर whom डिड ब्राउनिंग से फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ब्राउनिंग ने किसके लिए कहा था फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस? कॉलरिज के लिए, टेनिसन के लिए, बायरन के लिए, या फिर वर्ड्सवर्थ के लिए? किसके लिए ये कहा था? वर्ड्सवर्थ के लिए कहा था स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हु डिफाइंड पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग? Who defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings? Shelley, Keats, Wordsworth or Coleridge? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सब लोग जानते हैं वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, who defined poetry as emotion recollected in tranquility? Who defined emotion recollected in tranquility? ऑप्शन ए इमर्सन, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी पोप, या ऑप्शन डी टेनिसन। कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हर्ड the still sad music of tranquility? Who among the following heard the still sad music of humanity? Option A Hardy, option B Arnold, option C Tennyson, and option D Wordsworth. Option D Wordsworth is the right answer. Okay, next question, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lies too deep for tears. These lines are from which of the following poem? Option A Dover Beach, option B In Memoriam, option C Dejection and Ode, and option D Immortality Ode. Which option is the right answer? Right answer is Immortality Ode. To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lies too deep for tears. Immortality Ode. Who launched the newspaper The Watchman for converting humanity? Who launched the newspaper? किसने ये न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम था द वॉचमैन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी को कन्वर्ट करने के लिए किसने लिखा था? किसने लॉन्च किया था? ब्लेक, कॉलरिज, शैली या बायरन? फटाफट बताइए इसका कौन सा आंसर है। अब इसमें तो वर्ड्सवर्थ है नहीं कि बार बार वर्ड्सवर्थ टिक करेंगे। हु लॉन्च द न्यूज़पेपर द वॉचमैन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी? कॉलरिज इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वॉज वन ऑफ द 4 poems Coleridge contributed to lyrical ballads. How many poems did Wordsworth contribute to the volume? वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था? पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी 15। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 19। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वॉज वन ऑफ द 4 poems of Coleridge.
दैट कॉलरिज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स में कॉलरिज ने जो 4 पोएम लिखी थी उसमें एक द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने तो 4 में से एक द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कितने पोएम्स कंट्रीब्यूट किया था उसकी नंबर बताइए, संख्या बताइए। तो 19 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज वॉज कंसीव्ड इन अ ड्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज वॉज कंसीव्ड इन अ ड्रीम। ऑप्शन ए क्रिस्टाबेल, ऑप्शन बी द एंशिएंट मैरिनर, ऑप्शन सी डिजेक्शन एंड ओड, ऑप्शन डी कुबला खान। करेक्ट आंसर कौन सा होगा फटाफट बता दीजिए। करेक्ट ऑप्शन होगा कुबला खान। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज वॉज कंसीव्ड इन अ ड्रीम। ये कुबला खान जो है वो दिमाग में सपने में आया था और कॉलरिज उठ के फिर से वो वर्क लिखने लगे थे कुबला खान। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज यूजेज द मिथ ऑफ लामिया एंड वेम्पायर। बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टाबेल, ऑप्शन बी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट एंड ऑप्शन डी नाइट स्टॉर्म। कौन सा इसका आंसर करेक्ट है फटाफट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज यूजेज द मिथ्स ऑफ लामिया एंड वेम्पायर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टाबेल। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 332। द फ्रेजेस स्टारलाइट डोम एंड रोड टू Xanadu appears in which of the following poems? Option A Ode on a Grecian urn, Kubla Khan, which the Witch of Atlas, the Ancient Mariner। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? कुबला खान इज द करेक्ट। द फ्रेजेस स्टारलिट डोम एंड रोड टू Xanadu appears in which of the following poems? Kubla Khan is the right answer. Next, in which chapter of Biographia Literaria 1817 does Coleridge make a distinction between fancy and imagination? In which chapter of Biographia Literaria 1817 does Coleridge make a distinction between fancy and imagination? ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। कौन सा इसका आंसर सही है? ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट in which chapter of Biographia Literaria does Coleridge criticize Wordsworth theory of language? In which chapter of Biographia Literaria does Coleridge criticize Wordsworth theory of language? बायोग्राफिया के किस चैप्टर में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के थियरी के लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 14। कौन सा है जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 14। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड ये क्वेश्चन कैसा कहता है विच वर्क ऑफ कॉलरिज एमंग द फॉलोइंग is on the subject of philosophy? Which work of Coleridge among the following is on the subject of philosophy? Option A Biographia Literaria 1817, option B Aids to Reflection 1825, option C Sibyllin Leaves and option D Table Talk। कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825। विच वर्क ऑफ कॉलरिज among the following is on the subject of philosophy? फिलॉसफी के सब्जेक्ट पर कौन सा इनका वर्क है? एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 336 पे। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर बाय कॉलरिज वॉज पब्लिश्ड। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर by Coleridge was published
in his lifetime, in his mature years, posthumously, or option D in the year of his death. कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन सी posthumously. Posthumously is the right answer. Next question, which poem of Byron made him famous overnight? कौन सा बायरन का पोएम उनको रातों रात फेमस कर देता है? ऑप्शन ए चाइल्ड हेरोल्ड 1812, इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिवर्स 1807, आवर्स ऑफ आइडलनेस 1807, द सीज ऑफ कॉरिंथ। इसमें से कौन सा वर्क है, कौन सा पोएम है जो बायरन को फेमस कर देता है, ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं वो? ऑप्शन ए चाइल्ड हेरोल्ड 1812, इसको ज़रूर याद कर लेना स्टूडेंट्स। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट अपीयर्स इन कीट्स, शैली, ब्राउनिंग, बायरन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बायरन। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट अपीयर्स इन बायरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ बायरन इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट? बायरन का कौन सा पोएम ग्रेटेस्ट कंसीडर किया जाता है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए प्रिजन ऑफ चिलन, डॉन जुआन, बेप्पो, द विजन ऑफ जजमेंट। कौन सा करेक्ट आंसर है? डॉन जुआन इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ बायरन इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट? डॉन जुआन। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बायरन इज नॉट अ प्ले? बायरन का कौन सा वर्क प्ले नहीं है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है द विजन ऑफ जजमेंट, मैनफ्रेड, केन एंड मैरिनो फेलिरो। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन ए द विजन ऑफ जजमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बायरन इज नॉट अ प्ले? द विजन ऑफ जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 341 है हु अमंग द फॉलोइंग रोट सेटायरिकल पोएम? इनमें से किसने सेटायरिकल पोएम्स लिखा था? जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शैली। कौन कौन से ये चार राइटर्स हैं? इनमें से बताइए कि किसने सेटायरिकल पोएम्स लिखा था। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज बायरन। बायरन ने क्या लिखा था? सेटायरिकल पोएम्स। हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म? हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म? ऑप्शन ए बायरन, ऑप्शन बी ब्राउनिंग, ऑप्शन सी हार्डी एंड ऑप्शन डी शैली। कौन सा करेक्ट है इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, फटाफट बताइए, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म? नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैलीज क्वीन मैब इज वन ऑफ हिज? ऑप्शन ए मिडिल पोएम्स, अर्ली पोएम्स, लेटर पोएम्स या पोस्थमस पोएम्स था? तो इसका ऑप्शन करेक्ट वाला हो जाएगा अर्ली पोएम्स। शैलीज क्वीन मैब इज वन ऑफ हिज अर्ली पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ही 4-5 क्वेश्चन और रह चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शैली इज अ पोएटिक ड्रामा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शैली इज अ पोएटिक ड्रामा? एलास्टर और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ऑप्शन बी द सेंसी, ऑप्शन सी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ऑप्शन डी प्रोमेथियस अनबाउंड। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें द सेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ शैली इज पोएटिक ड्रामा? तो द सेंसी इसका पोएटिक ड्रामा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 345, शैली बेस्ड हिज प्रोमेथियस अनबाउंड ऑन एन एंशिएंट प्ले ऑफ सोफोक्लिस, यूरिपिडस, एस्चिलस और सेनेका। चलिए बताइए कौन सा आंसर इसका सही है? एस्चिलस इज द करेक्ट ऑप्शन। शैली बेस्ड हिज प्रोमेथियस अनबाउंड ऑन एन एंशिएंट प्ले ऑफ एस्चिलस।
Next question. If winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be far behind? Appears in which of the poems? कौन से पोएम में ये आता है? ऑप्शन ए टू आटम, टू ए साइलाक, टू क्लाउड, ओड टू द वेस्ट विंड. जल्दी से बताइए. ओड टू द वेस्ट विंड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट. शैली रोट एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, बायरन, स्कॉट या सऊदी. फटाफट बताइए. शैली रोट एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ. Shelley wrote Adonis on the death of option A Keats, option B Byron, option C Scott, option D Southey. Correct option is Keats, option A. Next question. Our sweetest songs are those that tell us saddest thoughts. Comes from option A Keats, Shelley, option B Shelley, option C Hardy, option D Arnold. तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है शैली, ऑप्शन बी. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शैली रिप्रेजेंट बायरन्स थॉट ऑफ कैरेक्टर? मास्क ऑफ एनार्की, ऑप्शन बी एपिप ये जो है ऑप्शन बी है इपिप्सीचाइडियन, और ऑप्शन सी है जूलियन एंड मोडेलो एडोनियस. कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? फटाफट बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शैली रिप्रेजेंट्स बायरन थ्रू अ कैरेक्टर? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन सी जूलियन एंड मोडेलो इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Shelley's The Defense of Poetry 1821 was provoked by Godwin, Burke, Peacock and Byron. जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीकॉक. Shelley's The Defense of Poetry 1821 was provoked by a peacock. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Who wrote Imitation of Spenser? Option A Keats, option B Tennyson, option C Shelley and option D Browning. Who wrote Imitation on Spenser? Correct option is Keats, यानी कि ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन है On First Looking into Chapman's Homer is about Keats' praise of. Option A Homer, option B Chapman, option C Chapman's translation of Homer, ऑप्शन डी आर्ट ऑफ पोइट्री. कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? जल्दी से बताइए. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर. ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अबाउट कीट्स प्रेज ऑफ चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर. ओके लास्ट क्वेश्चन वी हैव. इन हिज अर्ली पोइट्री कीट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बिसाइड्स स्पेंसर बाय. ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी लाइहैंड, ऑप्शन सी सऊदी एंड ऑप्शन डी कॉलरिज. ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लाइहैंड. इन हिज अर्ली पोइट्री कीट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बिसाइड स्पेंसर बाई लाइहैंड. स्टूडेंट रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन to get many more questions. Today I was feeling not well, that's why it was okay. Overall, thank you so much for watching this video.